multiplication and masking, we will try to write the program of assembly language program BCD to binary conversion. So we can break this program into three parts. One is the initialization, first step. Second step is the packed BCD to unpacked BCD by using masking concept. And third is the multiplication. So we will see one by one how we will initialize, how we will pack to unpack, and how we will multiply. So in initialization process, we will start, or we will initialize the memory location where we will store the input value, where we will store the output value. So for that purpose, we start LXI stack pointer. Stack means this is something मेमोरी लोकेशन, दिस इज समथिंग मेमोरी लोकेशन. जहां से भी आप अपनी स्टैक मेमोरी यूज स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो लोकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 3000 ले लिया, दैट माय स्टैक मेमोरी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लोकेशन 3000H. नाउ द इनपुट बफर where I will receive my input. So HL register pair will receive or contain the input value, and suppose this is our input buffer. So this is again a memory location. Suppose this is my 2500H. Similarly, where I will store my result, that is register pair BC, and suppose this is output buffer, and again this is my memory location, and for this suppose I am using memory location number 2800H. So now the memory for input and output has been initialized. So now move A comma M. What is this M? This M is nothing but this is the input value. मेरा input का इस location पर है, वो है किस memory location पर input है, that will be transferred into the accumulator. Then stacks, then call the function BCD to binary conversion. So basically my main emphasis will be on this logic, BCD to binary conversion. So this is a subroutine call. So once the subroutine call, then the result will be stored stacks B, and the program will be halt. So now my main emphasis is in the call BCD bin. So now we come here. How we will write this function BCD bin? So before BCD bin, we will reserve or we will store the previous value of HL register pair and BC register pair by using these two instructions, push H, push B. These two instructions are not very mandatory to write, but just it will store the previous value of HL register pair and BC register pair. अब मेरा काम जो है क्या है, जो मेरा मेमोरी कंटेंट था वो कहाँ पर आ गया, एक्यूमुलेटर में. अब मुझे इस एक्यूमुलेटर की वैल्यू कहाँ पर लानी है, रजिस्टर में मूव B, A. एक्यूमुलेटर की वैल्यू कहाँ पर रहेगी आपकी, रजिस्टर B में. तो दिस इज हैविंग, सपोज दिस मेमोरी लोकेशन हैविंग 45 वैल्यू, जो मैंने एग्जांपल दिया ना 45 है, इसका BCD है, तो B में क्या आ जाएगा आपका BCD ऑफ 45. इज इट ओके? सो B की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर 45 मीन्स 0 1 0 0 एंड 0 1 0 1. इज इट ओके? सो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कहां पर आएगी, रजिस्टर B में. अब मेरे को क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, अनपैक टू पैक टू अनपैक. मुझे BCD 1 निकालना है और BCD 2 निकालना है. सो नाउ what I will do, that I will perform AND operation, that is ANI, AND immediately. और मेरे को सपोज BCD निकालना है, BCD 1, तो मैं किसके साथ AND ऑपरेशन करूंगा, OF. ये मुझे क्या देगा, BCD 1. BCD 1 that means least significant values देगा.
लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू जो भी आएगी मेरी, उसको मैंने एक रजिस्टर सी में स्टोर करा लिया। कहां से? एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर से कहां पर आ गया मेरा VCD1 रजिस्टर सी में। अब रजिस्टर सी आ गया, अब मेरे को क्या लगाना है? BCD2 निकालना है। वो भी कैसे निकालूंगा मैं भाई? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्किंग। अब BCD2 कहां से आएगा? किसको BCD करना पड़ेगा मुझे? एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर? एक्यूमुलेटर क्या हो गया आपका? एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया आपका BCD1। मैं फिर से क्या करूंगा? मूव B, A। जो वैल्यू बी में थी वो फिर से कहां पर आ गई? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अब इसका क्या करूंगा मैं? फिर से मास्किंग। मास्किंग किसके साथ करनी है? मुझे BCD2 निकालना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? F0। F0 करते मेरे पास क्या आ जाएगा? BCD2 आ जाएगा। ठीक है, अब BCD2 को मैंने कहीं स्टोर करा लिया। ठीक है, BCD2 को मुझे एक रजिस्टर में स्टोर करना है, बट बिफोर स्टोरिंग द BCD, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 45, what will the value of BCD2? BCD2 will be 0 1 0 0 0 0 0 0. This will be my BCD2, but here I want these bit at this location. My MSB bit should be at this location. So for doing this I will have to rotate these bits. मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। कि कितनी बार? 4 बार रोटेट करूंगा ताकि ये बिट मेरी उठकर यहां आ जाए। ठीक है, सो आई विल हैव टू मेक 4 टाइम्स रोटेशन। दैट इज RRC, 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 and now store these result into register T. अब एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को आप रजिस्टर डी में स्टोर कर लीजिए। इस टाइम पर रजिस्टर डी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी आपकी? 0 0 0 0। दैट मीन्स 0 इधर शिफ्ट हो गए और उधर क्या होगा आपका? 0 1 0 0। इज इट ओके? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इस पर कंडीशन लगानी है कि 10 को कितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। सो फॉर मल्टीप्लिकेशन मैंने एक रजिस्टर पहले से सेट कर लिया जिसमें वैल्यू रख दी E, 0 A H। दैट मीन्स E के अंदर क्या वैल्यू आ गई आपकी? E इक्वल्स टू 10। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस केस के लिए। तो मुझे कब तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक कि डी की वैल्यू कैसी ना हो जाए। ये कब तक करना है मल्टीप्लाई? जब तक कि 0 ना हो जाए। मल्टीप्लाई का मतलब मुझे ऐड करना है कब तक? जब तक कि ये 0 ना हो जाए। सो ऐड के लिए क्या है? मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने लिख दिया ऐड ई। ऐड ई। ई की वैल्यू क्या है आपकी? 10। एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा आपका? 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो बिफोर डूइंग सो मूव MBI E, मुझे एक्यूमुलेटर को कैसा करना पड़ेगा? एक्यूमुलेटर को मुझे कैसा करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए मैं क्या करूंगा? XRA जोर ऑपरेशन कर दूंगा। जोर ऑपरेशन करने से क्या है? एक्यूमुलेटर कैसा हो जाएगा आपका? एक्यूमुलेटर के साथ जोर करने से क्या हो जाएगा? 0। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। इज इट ओके? XRA, ऑपरेशन ऑफ XRA। एक्यूमुलेटर के साथ XOR जब करूंगा तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। नाउ आई इनिशियलाइज दी MBI E, 0 A। अब रजिस्टर E की वैल्यू को मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया और इसी को मुझे क्या करना है? रिपीटेडली ऐड करना है। कब तक ऐड करना है? जब तक कि D की वैल्यू क्या ना हो जाए आपकी? 0। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 टाइम्स लेगा, यहाँ पर 7 है तो 7 टाइम्स लेगा, एंड सो ऑन। सो I make one more label here, that is add E। एक बार ऐड हुआ, देन डिक्रीमेंट D। D रजिस्टर का क्या? डिक्रीमेंट किया। कब तक डिक्रीमेंट करना है? जब तक कि D की वैल्यू क्या ना हो जाए? 0। दैट मीन्स जंप इफ
नॉट जीरो, तब तक क्या करना है, सम को कॉल करना है। जब तक डी की वैल्यू क्या नहीं हो जाए आपकी, जीरो नहीं हो जाती, तब तक क्या करना है, इसको कॉल करना है। इसको कब तक कॉल करेगा ये, 4 टाइम्स, इस केस में 4 टाइम्स तक कॉल करेगा। 4 टाइम्स तक कॉल करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40। अब 40 आ गया मेरे पास। अब 40 के बाद मुझे क्या करना है, उसमें BCD1 को ऐड करना है। BCD1 कहाँ है मेरा, मूव C, A। BCD1 कहाँ है मेरा, रजिस्टर C में। तो और एक्यूमुलेटर में क्या आ गया आपके पास, अब एक्यूमुलेटर में 40 आ गया। नाउ ऐड C, ऐड C क्या करेगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में C के कंटेंट्स को ऐड कर देगा। और एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो चुका होगा इस टाइम तक 40 इस केस में। तो ऐड C करने के बाद अब कुछ नहीं, आप पॉप कर दीजिए रिजल्ट को, पॉप B, पॉप H, पॉप B था, आप उल्टा कर दीजिए, पॉप B, पॉप H एंड रिटर्न। So now the function will return to call instruction and your result will be stored into staxb जो स्टार्टिंग में था रजिस्टर B में स्टोर हो जाएगा आपका। So in this way we can convert the BCD to binary number. So important notes for BCD to binary are: number 1, initialization. It should be done very carefully. Second, you should be very clear for the packed BCD to unpacked BCD. So that can be achieved by masking. मास्किंग में BCD1, BCD2 नंबर आते हैं, और जो आपका हायर डिजिट है दैट इज टेंस प्लेस पर है, उसको क्या करना है, मुझे रोटेट करना पड़ता है ताकि वो हायर डिजिट जो है वो मेरा लोअर डिजिट पे आ जाए। और उसको कब तक रोटेट करते हैं, दैट इज 4 टाइम्स इस केस में। एट दैट टाइम वी यूज द इंस्ट्रक्शन RRC, rotate accumulator right, rotate accumulator right. So and after rotation we add the simple BCD1 number to that. I hope that it is clear to you. If you have any doubt you can write into comment box, but before that you can subscribe my channel,